Morning students, Razul here. In previous video we discussed some topics of chapter number 5 that is coal and petroleum of class 8th. हम डिस्कस कर चुके थे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. नेक्स्ट हमने टॉपिक किया था फॉसिल फ्यूल्स. उसके बाद हमने किया था कोल के बारे में. नेक्स्ट पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी हमने पढ़ लिया था. और एनर्जी रिक्वायरमेंट और प्रॉब्लम जो आती है ओवर यूटिलाइजेशन से वो भी हम डिस्कस कर चुके थे. सो टुडे नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. In the beginning of this chapter, we have learned that natural resources like coal, petroleum, natural gas, forests, minerals, etc. These are non-renewable or exhaustible in nature. They require millions of years for their formation. If we do not use fossil fuels judiciously, there is a possibility of energy crisis in the future. The two major consequences of over extraction of fossil fuels are exhaustion of existing resources and pollution of air. Next one, judicious use of energy. You are already aware that we do not have enough energy resources to meet all our domestic and industrial requirements through fossil fuels. जैसे कि हम अभी कर ही चुके हैं. इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने देखा था कि हम मतलब इतना ज़्यादा हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है, मतलब इतने रिसोर्सेज नहीं है ताकि हम अपने डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फॉसिल फ्यूल से पूरा कर सकें. Therefore, we must not only use the available resources with utmost care, but must also not waste them. Means हमें केयर के साथ ही नहीं बल्कि उनको वेस्ट करने से भी रोकना है, वेस्टेज से भी रोकना है. In addition, we should try to make use of renewable resources, energy sources to meet our energy requirements. The advantage of using renewable energy sources is that they cause no or minimal pollution and provide energy to. मतलब या तो वो करते ही नहीं है पोल्यूशन या फिर बहुत कम पोल्यूशन करते हैं. कौन? जो कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं. ठीक है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया. So next is conservation of energy. Wise and economic use of energy resources is called conservation of energy. Certain suggestions for energy conservation are as given below. First one is the electrical appliances used in homes, offices, schools, hospitals and other establishment should be switched off when not in use. Means we should save electricity. Use of solar cookers, solar heaters and other appliances running on solar energy should be encouraged. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जो कि सोलर हो, सन एनर्जी से हमें मिलते हैं. यहाँ पे कुछ फॉसिल फ्यूल्स दिए हुए हैं, जैसे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं. जैसे सॉलिड फ्यूल्स हैं, इसके कुछ एग्जांपल हैं. कोल, और कोल में 3 टाइप्स आ जाते हैं इसके, कोक, कोलतार एंड कोल गैस. लिक्विड जो फ्यूल्स हैं उनमें 2 हो जाते हैं, पेट्रोलियम और हैवी ऑयल. और पेट्रोलियम से ही पेट्रोल भी आता है, डीजल भी और केरोसिन भी एक्सेट्रा और भी आते हैं बहुत कुछ. और गैसेस फ्यूल में नेचुरल गैस और नेचुरल गैस में CNG. Whenever and wherever possible, wind power should be used to generate electricity. Hydroelectric energy should be generated from water bodies with the help of dams and generators. Tidal energy. What is tidal energy? The energy in a tide flowing from a basin into an open sea is known as tidal energy. So tidal energy should be conserved to drive generators. Energy should be generated from the biomass and be utilized in rural or semi-urban areas of the country. Petrol, diesel should be saved while driving by properly maintaining the vehicle, using correct type of tires, switching off the engine while waiting at the red light, and driving at a moderate and constant speed. So next is recycling of paper. The word paper is derived from the papyrus plant that grew wild along the Nile River in Egypt about 4,000 years ago. You are all very familiar with paper.
You must have used different kinds of paper, white or colored, smooth or rough, shining or matte, etc. Do you know how paper is made or what is the material used in paper making? Paper is made of cellulose fiber, which is the main constituent of wood pulp. Pulp is the soft and spongy part of the tree. Trees are harvested to make paper in tree farms. The second source of material for making paper is recycled fiber. More and more paper is recycled every year by using its cellulose fibers second, third or fourth time. Recycling of paper is the process of recovering waste paper and remaking it into new paper products. Recycle means क्या होता है आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ है उसको दोबारा से क्रिएट करना, उस मतलब किसी और चीज़ में दोबारा से उसको क्रिएट करना, तो वो क्या होएगा, रिसाइकल करना, ठीक है। सो वेस्ट पेपर को दोबारा से वही न्यू पेपर प्रोडक्ट में बनाने को क्या कहेंगे, रिसाइकल। पेपर रिसाइकलिंग सेविंग ट्रीज। अब देखो जो पेपर पहले से ही बन चुके हैं उससे दोबारा से पेपर बनाने से क्या होगा, एक तो जो ट्रीज होंगे वो सेव होंगे, ठीक है, और जो पोल्यूशन है वो भी कम होगा, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट बाय यूटिलाइजिंग वेस्ट मटेरियल। तीसरा काम क्या हो जाएगा कि जो हम वेस्ट प्रोडक्ट्स में उनको फेंक देते हैं, पेपर्स को, जो यूज़ किए हुए पेपर्स होते हैं, वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी, वेस्ट भी नहीं जाएंगे, ठीक है। पेपर, cotton rags and unwanted biomass. The major steps in recycling of paper have been summarized below. These are some steps to recycle paper. So first is sorting. Paper is first sorted, means choose करना, sorted and any plastic, metallic or other contaminants are removed from it. Next is making pulp. The sorted paper is sent to the pulper where it is heated with warm water and chemicals. Here the paper breaks down into tiny pieces and strands of cellulose fiber which are free from lignin. Next one is filtering and decaying. The pulp obtained from the pulper has only 1 to 1.5% fiber. ठीक है, जो पल्प बन के तैयार हुआ है उसमें सिर्फ 1 से लेके 1.5% तक फाइबर होता है। Kaolin and other additives are added to the pulp to enhance the property of paper. उनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छा, उनकी क्वालिटीज़ को अच्छा बनाने के लिए इसके अंदर ये ऐड कर देते हैं। द पल्प इज़ देन, और जो वो पल्प होता है उसको फिर फिल्टर करवाया जाता है, ठीक है। द पल्प इज़ देन फिल्टर्ड थ्रू अ नंबर ऑफ सील्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज सच एज कोटिंग्स, कंटेमिनेंट्स एक्सेट्रा। मतलब उसको फिर पल्प में से पास करवाया जाता है ताकि उसमें से जो भी जो कंटेमिनेंट्स हैं, ठीक है, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसमें से निकल जाएं। समटाइम्स अ पल्प इज डिंक्ड टू रिमूव प्रिंटिंग इंक फ्रॉम इट, ताकि उसकी जो इंक है उसको रिमूव किया जा सके। द डिंक्ड पल्प इज़ देन ब्लीच्ड टू मेक द एंड प्रोडक्ट वाइट, मतलब वाइट बनाने के लिए उसको फिर ब्लीच किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ रोलिंग एंड ड्राइंग। फिर उसको रोल करके ड्राई किया जाता है। देखो क्या है, द पल्प नाउ फ्री फ्रॉम एनी कंटेमिनेंट, मतलब अब उसके अंदर कोई कंटेमिनेंट नहीं रहा, कोई इम्प्योरिटी नहीं रही है। इज मिक्सड विद wood fiber, also called virgin fiber, to provide strength and smoothness. Okay, it is then passed through wire screens where water is drained out and sheets of paper start forming. क्या होता है कि उसको एक मतलब वायर स्क्रीन से निकाल दिया जाता है उसको, ताकि जो उसमें एक्स्ट्रा वाटर है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, उसमें कोई मॉइस्चर ना बचे। These sheets are passed through a series of rollers and dryers which squeeze, press and smoothen the watery sheets to get the desired finish. अब यहाँ पे देखो पिक्चर में दिखाए हुए हैं कुछ। नंबर फर्स्ट इज सॉर्टिंग पेपर, पहले सॉर्ट किया गया पेपर को, उसके बाद मेकिंग पल्प, उसका पल्प बनाया गया है, देखो साइड पे पल्प है। नेक्स्ट इज फिल्टरिंग, नेक्स्ट वन इज फ्लोटेशन चैम्बर एंड नेक्स्ट इज ब्लीचिंग, उसको वाइट करने के लिए जो होता है। और उसके बाद क्या पढ़ा है हमने, रोलिंग एंड ड्राइंग मीन्स रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। यहाँ तक तो था कि हम मतलब अगर हमने बड़े पैमाने पे ये सब करना हो, रिसाइकल करना हो पेपर को, तो ये तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में होगा, पर हम घर पे भी ये कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं पेपर को, ठीक है। कैसे, वो देखो आगे आएगा। रिसाइकलिंग लेड्स टू वेस्ट रिडक्शन। Paper accounts for a significant amount of municipal waste as it is an integral part of our everyday life.
The technological advancement with excessive use of computers and photocopiers has increased the consumption and wastage of paper. By using paper carelessly, we contribute to depletion of forest cover, drastic climate changes, water pollution and global warming. मीन्स क्या है कि अगर आप ये बात सोच लो कि अगर आप पेपर को केयरलेसली यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहली बात तो कि आप फॉरेस्ट को कम कर रहे हो, ठीक है, ट्रीज़ को कम करते जा रहे हो. नेक्स्ट वन इज़ ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंजेस. जो अब अगर फॉरेस्ट की डिप्लीशन हो रही है, फॉरेस्ट अगर कम हो रहे हैं तो क्लाइमेट चेंजेस भी उसी के कारण ही होंगे और वाटर पोल्यूशन होगा उससे, ठीक है. और नंबर 4 जो थिंग है ग्लोबल वार्मिंग, मतलब एक चीज़ की वजह से हम चार चीज़ों को और बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, बाय यूजिंग पेपर केयरलेसली. सो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर leads to less waste and its disposal problem, that is conservation of energy saving on fresh paper production, that is conservation of resources and less water and air pollution. मतलब एक पेपर को रिसाइकल करने से ये सब चीज़ें हो सकती हैं. सो लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी टू लर्न हाउ टू मेक रिसाइकल हैंडमेड पेपर. मतलब इसको हम घर में कैसे बना सकते हैं. So to make recycled handmade paper, firstly for this activity you need waste paper from magazines, newspapers, etc., starch, grinder, rectangular trays and a sieve with fine wire mesh. So क्या करना है, देखो सबसे पहले tear the paper into small pieces. अब ये देखो पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, ये tear कर रहा है ना पेजेस को. And soak them in a tub containing warm water. गर्म पानी में वाटर के अंदर, गर्म पानी के अंदर उसके अंदर सोक करना है, ठीक है. एंड स्टार्च फॉर 6 to 8 hours. 6 to 8 hours के लिए उसको ऐसे ही पड़ा रहने देना है. फिर क्या करना है, नाउ टेक द कंटेंट्स आउट ऑफ द वाटर एंड ग्राइंड दैम इनटू अ सॉफ्ट फाइन एंड स्मूथ पल्प. अब उसको निकाल के क्या करना है कि उसको ग्राइंड करना है ताकि एक स्मूथ पल्प की तरह बन जाएगा. सीव द पल्प सो दैट वाटर ड्रेन्स आउट. फिर उसको क्या करना है, सीव मीन्स जो वो होती है ना, जैसे मैश की तरह होती है, छलनी जिसको बोलते हैं, उसमें से सीव करना है ताकि जो पानी है, एक्स्ट्रा वाटर है, वो निकल जाए. सीव द पल्प सो दैट द वाटर ड्रेन्स आउट. ट्रांसफर द पल्प ऑन द ट्रेस. फिर क्या करना है, उस पल्प को ट्रे के ऊपर रखना है. स्मूदन इट इनटू द थिन लेयर्स एंड अलाउ इट टू ड्राई. उसको फिर स्मूथ कर देना है, लेयर्स बना देनी है उसकी, और उसको ठंडा मतलब ड्राई करने के लिए उसको ऐसे छोड़ देना है. लीव द ट्रे फॉर अ फ्यू आवर्स टिल द पल्प लेयर ड्राइज आउट कम्प्लीटली. उसको ऐसे ही पड़ा रहने देना है कुछ आवर्स के लिए ताकि वो जो पल्प है वो अच्छे से ड्राई हो जाए. नाउ रिमूव इट केयरफुली फ्रॉम द ट्रेस. योर हैंडमेड पेपर इज रेडी नाउ. So you can use turmeric to give color to the paper or even put dry leaves to give pattern. So यहाँ पे पिक्चर में भी देखो पहले क्या किया हुआ है, पेजेस को वार्म वाटर के अंदर डाल दिया, फिर उसको ग्राइंड कर दिया. ग्राइंड करने के बाद उसका मैश बन गया. एक ट्रे, ये सीव ले ली, सीव के ऊपर ये देखो यहाँ पे ट्रे पे डाल रहे हैं, सीव के ऊपर से पास करवा के, ठीक है. तो ये वाटर जो होगा, एक्स्ट्रा जो वाटर होगा वो निकल जाएगा. फिर ये देखो यहाँ पे पल्प बना दिया है, ठीक है, और उसको ड्राई करने के लिए रख दिया. तो जब ये सूख जाएगा तो यहाँ पे ये हमारा जो हैंडमेड पेपर है वो रेडी हो जाएगा. सो अब हम कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं. हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. फर्स्ट वन इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, द मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, द नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी एग्जॉस्टेड as a result of human consumption. And inexhaustible natural resources is the natural resources which are not likely to be exhausted due to human activities and are present in unlimited quantities. For example, solar energy. Fossil fuels, the materials of biological origin occurring within the earth crust which can be used as a source of energy. Carbonization, the slow chemical process of conversion of wood into coal. Refining means the process of separating various constituents or fractions of petroleum by fractional distillation. Next one is conservation of energy, wise and economic use of energy resources. So this was our chapter.
Our chapter is completed now. Subscribe and share my channel if you like. Thanks for watching.